continue the chapter, the living world. Okay. Do you remember what we had studied in the last class? Last class we were discussing about the your some terminologies like what is biodiversity. Okay, we have also discussed about the binomial nomenclature. Also, we had studied about taxonomy, systematics, classification. Okay, this terminology we had already discussed in the previous class. Now, let's start with our new topic, that is taxonomical hierarchy. Okay, what do you understand by the term taxonomical hierarchy? See, stepwise arrangement or classification of plants and animals means plants and animals के स्टेप वाइज अरेंजमेंट को फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, ऐसे स्टेप वाइज अरेंजमेंट को हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं. ठीक है, स्टेप वाइज अरेंजमेंट और स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Within this taxonomical hierarchy, we will study the 7 obligate categories. Okay, these obligate categories are the species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. These 7 are the obligate categories, means these are the taxonomical hierarchy. These are the stepwise arrangement of the plants and the animal. So a taxonomic category is a rank, it is a level in the hierarchical classification of an organism. ठीक है, there are 7 obligate we have discussed from species to the kingdom. जो कैटेगरी होते हैं, कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जिन्हें कि हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल सकते हैं और इन्हीं को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन और द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज योर स्पीसीज. इस स्पीसीज को हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. Okay, or basic unit of taxonomical hierarchy species. See, we have panther leopard, panther tigris, panther pardus. The species, this is your genera, this is species, genus species. You see the species is different but the genera are the same. Genera are the same. They are panther, leo, panther, tigris. If we only write panther, we will not write leo, we will not write tigris, we will not write pardus. Can we distinguish which is leopard, which is tiger? No, we cannot distinguish. That's why we have to write the species name so that we can recognize it is leopard or it is your tiger. So species is what? Species in which maximum or fundamental similarity is there as compared to other organism. Okay, जिनमें जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी रहेगी जिन स्पीसीज में, उनके जिनेरा क्या होते हैं, उतने कॉमन होते हैं. मीन्स ये लेपर्ड में, ये टाइग्रिस में, ये पार्डस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है. मैक्सिमम सिमिलैरिटी अमंग दीज ऑर्गेनिजम्स एज कंपेयर टू द अदर. And these organisms have the capacity to interbreed. ये आपस में interbreed कर सकते हैं, आपस में reproduce कर सकते हैं. So due to their maximum similarity, okay, due to their maximum or fundamental similarity within the organisms as compared to other organisms, they are kept under the same genera that is known as Panthera. Understood what is species? तो species is a group of individual organisms. ठीक है, जैसे लेपर्ड है तो बहुत सारे लेपर्ड हो गए, बहुत सारे टिग्रिस हो गए, बहुत सारे पार्डस हो गए, बहुत सारे. So group of individual organisms with fundamental similarities, they are known as species. We can distinguish one species from the other species based on their morphological differences. Understood? They are able to interbreed and they produce the fertile offspring. Okay. Now this ये understand कि एक species है तो इन तीनों species में इतनी similarity है, इतनी ज़्यादा maximum similarities है कि they belong to the same genera that is known as Panthera. So species is the genera. हम species समझ में आ गया. इसे basic unit क्यों कहते हैं? क्योंकि without species we cannot recognize the organisms. That's why it is known as basic unit of classification. Now move on to the genus. अब इनमें इतनी सिमिलैरिटीज हैं इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में एज कम्पेयर टू अनदर ऑर्गेनिजम्स. दे बिलोंग टू द सेम जेनस दैट इज योर पैंथेरा. ओके, दे बिलोंग टू द सेम जेनस. So can we say that genus is nothing but group of related species? Group of related species is known as what? Genus. So listen, ये पैंथेरा एक जेनस है.
फेलिस 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 में फेलिस हम फेलिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ द कैट। फेलिस में फेलिस भी एक जीनस है। ये पैंथेरा और ये फेलिस मीन्स कैट। यू हर्ड दैट जो शेर होती है, जो बिल्ली होती है वो शेर की मौसी होती है। ओके जो बिल्ली और शेर है उनकी हाइट इवन बहुत डिफरेंस है हाइट में, तो भी उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है। ओके ओनली हाइट इज डिफरेंट। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं टाइगर में, लेपर्ड में या फिर पैंड्रस में और हमारे कैट में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। सो ड्यू टू द सिमिलैरिटीज बिटवीन द जीनस पैंथेरा एंड द जीनस फेलिस, they can kept under the same family known as Felidae। ओके उन्हें एक ही फैमिली में रखा गया फेलिडे, बिकॉज जीनस पैंथेरा में मीन्स तुम्हारे लेपर्ड, टाइगर्स और पैडस में, और जो फेलिस है जो कैट है उनकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें दिखी। मॉर्फोलॉजी हमारे फीचर्स सेम थे, कुछ फीचर्स को सेम होने के कारण दे बोथ आर केप्ट अंडर द सेम फैमिली फेलिडे। मीन्स फेलिडे फैमिली के अंदर ही तुम्हारे सारे पैंथेरास आते हैं, पैंथेरास लिपार्ड, पैंथेरास टाइग्रिस, और फेलिडे फैमिली के अंदर ही फेलिस भी है। सो वी कैन से दैट फैमिली इज जीनस इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज को हम बोलते हैं जीनस। तो ये जो आपके फेलिडे हो, एक और फैमिली आता है कैनिडे। ठीक है, कैनिडे मीन्स इट इज अ फैमिली ऑफ डॉग। दिस बोथ फैमिली ऑफ डॉग एंड द फैमिली ऑफ कैट, इनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। तो कैट और डॉग में क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं? दोनों फ्लैश ईटर्स हैं। ओके मीन्स दोनों के दोनों क्या है? कार्निवोरस हैं। सो दे केप्ट अंडर द ऑर्डर कार्निवोरा। तो इसको हम कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर रखते हैं। बहुत ध्यान से समझो, पहले हमने स्पीसीज की बात की थी, लियो, टिग्रिस, पार्टस, ये सब क्या डिफरेंट स्पीसीज है, इंडिविजुअल स्पीसीज है जिनमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होने के कारण हमें इसे एक सेम जीनेरा में रखा और जीनस में रखा, जैसे पैंथेरा। ठीक है, उसी तरह फेलिस एक कैट का साइंटिफिक नेम है। तो कैट में भी और इन तीनों जीनस मतलब पैंथेरा, लेपर्ड और टाइग्रिस में भी, इन तीनों स्पीसीज में और जो जीनस पैंथेरा से बिलोंग करते हैं और फेलिस, पैंथेरा और फेलिस में भी इतनी हमें ज्यादा सिमिलैरिटी दिखी कि हम उसे एक ही फैमिली में रखें, फेलिडे में। अंडरस्टूड। नाउ एक और फैमिली होती है कैनिडे, जिसे कि हम डॉग फैमिली बोलते हैं। तो कैनिडे और फेलिडे मीन्स डॉग और कैट में क्या सिमिलैरिटी कि बोथ आर फ्लैश ईटर, बोथ आर कार्निवोरस। दैट्स व्हाई वी कीप दिस बोथ कैट एंड डॉग अंडर द सेम ऑर्डर दैट इज नोन एज कार्निवोर। ओके नाउ कार्निवोर एक ऑर्डर है, वैसे प्राइमेट भी ऑर्डर होते हैं। अंडर द प्राइमेट्स आपके ह्यूमन आ गए, एप्स आ गए, चिंपैंजीज आ गए, मंकीज आ गए। अंडरस्टूड। अब एक कार्निवोरस एनिमल्स में और एक प्राइमेट्स में, कार्निवोर ऑर्डर और प्राइमेट्स ऑर्डर में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है? सो दे हैव द मैमरी ग्लैंड्स। ओके सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, दिस कार्निवोरा ऑर्डर एंड प्राइमेट ऑर्डर्स, they both are kept under the same class known as mammalian class, mammalia class. Okay so because carnivore ये जितने भी हैं डॉग और कैट और जितने भी प्राइमेट्स हैं सभी के पास क्या होती है? मैमरी ग्लैंड होती हैं। इनके फीमेल्स जो होते हैं, फीमेल कैट या फीमेल डॉग या फिर फीमेल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो अपने बेबीज को फीड कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द मैमरी ग्लैंड्स। So due to the presence of the mammary gland on the female, they are classified as a mammalia class. Okay. उसी तरह एक एम्फीबियन क्लास भी होता है, ठीक है, जो तुम्हारे लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर पे भी रह सकते हैं। अब मैमेलिया में और एम्फीबिया क्लास में क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है? तो ये सिमिलैरिटी है कि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। Presence of notochord. Due to the presence of notochord, these both mammalia class and amphibia class, they are classified as a chordate phylum or vertebrata phylum. क्यों वो chordate या vertebrata phylum में है? Because of the presence of this notochord. Notochord क्या होता है? Dorsoneural system है जो कि बच्चों में होता है। As it mature, it will turn into your vertebral column, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके एम्फीबियंस में भी होते हैं, ये मैमल्स में भी होते हैं। So due to presence of this notochord, they will be classified into the chordate phylum or we say vertebrate phylum. लेकिन सारे के सारे तो chordates नहीं होता है, सब में
तो वर्टिकल कॉलम नहीं होता है, तो सम आर नॉन कॉर्डेट्स और सम आर इनवर्टिब्रेट्स. सो phylum may be chordate or phylum may be non-chordate. This chordata phylum or non-chordata phylum will be classified into a separate kingdom known as kingdom Animalia. Understood? How from the species we move on to the kingdom. ठीक है, एक बार फिर से सुनो. हमने ये स्पीसीज बताई थी. लियो स्पीसीज है, टिग्रिस स्पीसीज है, पार्डस स्पीसीज है. इनकी सिमिलैरिटी के कारण इन्हें एक ही क्लास, एक ही जीनस में रखा गया, दैट इज नोन एज पैंथेरा. मीन्स वी कैन से दैट जीनस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज. ओके, उसके बाद पैंथेरा और फेलिस में, इन दोनों जीनस में भी काफी सिमिलैरिटीज दिखी गई. सो दे विल केप्ट अंडर द सेम फैमिली फेलिडे, और कैनिडे भी एक फैमिली होती है, डॉग की फैमिली. तो we can say that family is nothing but a group of related species. Now, Canidae and Felidae both are flesh eater. That's why they are kept under the carnivorous order. So we can say that order is nothing but it is a group of your related family. कार्निवोरस और प्राइमेट्स ऑर्डर में भी कुछ सिमिलैरिटीज दिखी. क्या दिखी? कि उनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंस थे. दैट्स व्हाई दे आर केप्ट अंडर द मैमेलिया क्लास. उसी तरह एक एम्फीबियंस क्लास होते हैं, एक रेप्टाइल्स क्लास होते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस दिखा. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड दे विल केप्ट अंडर द सेपरेट फाइलम नोन एज कॉर्डेट फाइलम. बट सम आर इनकॉर्डेट्स आल्सो. सो फाइलम मे बी कॉर्डेट, फाइलम मे बी इनकॉर्डेट, सॉरी नॉन कॉर्डेट. So this chordata and non-chordata, they both separately placed under which kingdom? Kingdom Animalia. So as we go on increasing from species to the kingdom, the similarities become decreasing. जब हम species में थे तो हमें सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटीज दिखी, बट जैसे ही मूव ऑन करते गए सिमिलैरिटीज क्या हो गई? बहुत बहुत कम होती गई. अब एक ही बात बताओ, मैमल्स को ही ले लो, ह्यूमन बींग को ले लो, एक फ्रॉग को ले लो. एम्फीबियंस में फ्रॉग आते हैं, हमारे ह्यूमन बींग है. ह्यूमन बींग और फ्रॉग में कितना जमीन आसमान का अंतर है. मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम नहीं हम, लेकिन सिर्फ एक ही चीज सेम था कि उनमें भी नोटोकॉर्ड है, हम में भी नोटोकॉर्ड होता है बचपन में. दैट्स वाई इन्हें दोनों को क्लासिफाइड एक ही फाइलम में किया गया. तो हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सिमिलैरिटीज क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है. तो लास्ट में जब हम किंगडम में पहुंचते हैं तो हमारे पास सिर्फ फ्यू सिमिलैरिटीज रह जाती है जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. तो वॉट एवर वी हैव स्टडीड, दिस इज द एनिमल क्लासिफिकेशन. उसी की तरह प्लांट क्लासिफिकेशन भी होता है. ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है कि जो फाइलम है वहां पे डिवीजन हो जाता है. फाइलम वर्ड की जगह हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं. बाकी सेम तुम्हारा प्लांट में भी ऐसे ही रहता है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द प्लांट. प्लांट में आप जैसे ये एनिमल्स में समझ आ गया कैसे लियो से तुम्हारा किंगडम तक हम पहुंचे, क्या क्या हमें सिमिलैरिटीज दिखी. जो अभी हमने बात की, जितने भी एग्जांपल्स दिए, ये एक प्लांट, एक एनिमल्स का था, किंगडम एनिमेलिया बना. अब किंगडम प्लांटे कैसे बनता है? किंगडम प्लांटे के लिए एग्जाम्पल लो सोलानम मेलनजीना, ठीक है, जो ब्रिंजल का नाम है, और एक हमने लिया सोलानम ट्यूबरसम जो कि एक पोटैटो का नाम है. ठीक है, जो सोलानम मेलनजीना हुआ और सोलानम ट्यूबरसम हुआ, इसमें मेलनजीना और ट्यूबरसम क्या है? एक स्पीसीज है. और स्पीसीज क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की. अब इन दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज थी पोटैटो और ब्रिंजल में कि दे आर केप्ट अंडर द सेम जिनेरा, दैट इज सोलानम. ओके, सेम इसी तरह है. यहाँ पे पैंथेरा लियो की जगह हम बात कर रहे हैं सोलानम मेलनजीना और सोलानम ट्यूबरसम की. दे आर केप्ट अंडर द टू स्पीसीज है यहाँ पे. लेकिन इन दोनों में पोटैटो और ब्रिंजल में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं कि दे आर केप्ट अंडर द सेम जीनस, दैट इज नोन एज सोलानम. नाउ द सोलानम एंड अनदर जेनरा पोटोनिया, ठीक है, और दतूरा, दे आर केप्ट अंडर द सेम फैमिली, दैट इज नोन एज सोलेनेसी फैमिली. उन्हें सोलानम को, पोटोनिया को और दतूरा को, इन तीनों जीनस को हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेजिटेटिव फीचर्स के कारण उन्हें एक ही फैमिली में रखा, दैट इज सोलेनेसी फैमिली. ओके, लाइक दैट सोलेनेसी फैमिली की तरह एक कॉन्वोल्यूसी फैमिली होती है. ओके, जो सोलेनेसी फैमिली और कॉन्वोल्यूसी फैमिली होती है, बेस्ड ऑन देयर फ्लोरल कैरेक्टर, बेस्ड ऑन देयर फ्लावरिंग, दे विल प्लेस्ड अंडर द पॉलीमोनियस ऑर्डर. वो किसके अंदर आएंगे? पॉलीमोनियस ऑर्डर के आएंगे. सेम जैसे हमने एनिमल्स में बात की कि इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक वो हो रहे थे, उसी तरह हम प्लांट्स में बात करेंगे. पहले स्पीसीज डिफरेंट थे,
उनके सिमिलैरिटीज की तरह सोलैनम जेनेरा में रखा गया। सोलैनम जेनेरा में उनके वेजिटेटिव फीचर्स को देख के उन्हें एक ही फैमिली में रखी गई, सोलेनेसी फैमिली में। सोलेनेसी फैमिली और कॉन्विलेसी फैमिली दो फैमिलीज हैं, उनमें फ्लोरल कैरेक्टर के बेस में हमने उन्हें एक ऑर्डर में रखा विच इज नोन एज पॉलीमेनियल्स ऑर्डर। उसी तरह रॉयल्स ऑर्डर होते हैं, उनमें ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन्स वी विल कीप इनटू द डाइकोटिलेडन्स क्लास। अंडरस्टूड? लाइक दैट डाइकोटिलेडन्स क्लास मोनोकोटिलेडन्स क्लास भी होते हैं, and on that dicotyledons class will go to the angiosperm division और gymnosperm division. Okay, यहाँ हमने phylum पढ़ा, वहां पे dicotyledons will be go to the एंजियोस्पर्म डिवीजन, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स डिवीजन भी होंगे। अब ये एंजियोस्पर्म डिवीजन और जिम्नोस्पर्म डिवीजन दे विल बी क्लासिफाइड एज अ सेपरेट किंगडम नोन एज प्लांटे किंगडम। तो दिस इज अ बॉटनिकल डिवीजन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड दिस इज अ जूलॉजिकल और योर animal division of the taxonomical hierarchy. Understood the difference? I have told them animals difference, animals example लेके मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, मेरे नोट्स में जो आगे उसमें मैंने प्लांट्स का बताया है, तो दोनों अपने ध्यान में रखो, which is easier explain it with that. Okay, now नेक्स्ट आपके 11th स्टैंडर्ड में या फिर नीट में पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या है? तो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ सेल इंफॉर्मेशन। इनके बेसिस पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, अंडरस्टूड? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या था? एग्जाम में आपसे इसके डेफिनेशंस आते हैं। ठीक है, स्पीसीज के, जीनस के, फैमिली के डेफिनेशंस आएंगे। जस्ट गिव द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। किसी भी एक का डेफिनेशन आ सकता है। पिछले क्लास में मैंने एक वर्ड यूज किया था टैक्सॉन। ओके, व्हाट इज दिस टैक्सॉन? अगर हम सिर्फ एक की बात करेंगे, सपोज हमने सिर्फ फाइलम की बात की, तो फाइलम क्या है? एक टैक्सॉन है। हमने सिर्फ ऑर्डर की बात की, ओके, सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल की बात करेंगे तो उसे हम बोलते हैं टैक्सॉन। अंडरस्टैंड? इसी का प्लूरल टैक्सा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसमें कि 7 कैटेगरीज है। ईच कैटेगरीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे, किंगडम तक जाएंगे, हमारी सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती जाएगी। अंडरस्टूड? मॉडर्न क्लासिफिकेशन किस पर बेसिस है? इन सभी चीजों पे हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनिमेलिया। I have also told you about the plant example, Plante kingdom. Now in the next class we will study about the taxonomical aids, which is the last part of the this chapter. Okay, till now keep revising and solve all the worksheets which I am giving to you. Thank you.